you individually some of the documents. You have to go through the documents, and if you have any questions, any doubts, you can ask me anytime. Apart from this one, the students who haven't received the documents from my side, they can text me. Okay, जो students लोगों ने documents जिनको नहीं मिले वो मुझे text कर सकते हैं on WhatsApp, so I can provide them the documents which I have already given to all of the students over here. Okay, जिनको documents नहीं मिले हैं या तो उन्होंने register नहीं किया रहेगा या तो फिर उन लोगों को कुछ और मसला रहेगा कि उन लोगों ने अपना मतलब उनको मैंने फिर या तो ग्रुप में ऐड नहीं किया रहेगा, तो ऐसा कुछ रहेगा, सो मे बी जिसकी वजह से उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे. ओके, second thing, please all of you put up your roll numbers over there. Okay, nobody will be there without roll number except Miss Roshan. Please put up your roll number there, jaldi jaldi. Okay, Mr. Samir, roll number should be there. Good one. So without wasting time, we're going to go ahead now. अभी हम लोगों ने जैसे कि पहले देखा था कि हमारा सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स हमारा अच्छा खासा चल रहा था, राइट? एंड वी हैव सीन most of the rules over there, and we are going to just finish the topic today over here. And if you have any questions, any doubts, you can ask me. I believe that all of you have spent your weekends fabulous. Okay, and if you have any questions, any doubts regarding that as well, you can ask me, and let's have it fluently. तो अब हमारा जो था, हमारा मेन जो खेल है वो ये वीक में स्टार्ट होने वाला है. क्या है वो कि जैसे सेंटेंसेस बनाना कैसे, हम लोगों को सेंटेंसेस इंग्लिश के अंदर बनते कैसे हैं, कैसे उनको देखना है, कैसे बनाना है, वगैरह वगैरह आज हम लोग आज के लेक्चर में हो सकता है अगर इसको फिनिश अगर हम लोगों ने किया आज, इफ यू सपोर्ट मी टू फिनिश इट सूनर, सो इंशाल्लाह आई कैन जस्ट मेक यू टू स्पीक अप एंड make you to just make sentences easier and well. So let's get back now to the next one. That's what we are going to have here, sentences. अब हम लोगों को मैं कुछ sentences वगैरह कैसे बनाने हैं वो हम लोग हमारा सिंगुलर प्लूरल खत्म होने के बाद में देखेंगे. Alright, now let's go ahead. Now last time we have seen already our singulars and plurals, correct? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताया था, बहुत सारे रूल्स हम लोगों ने वहां पर देखे थे. किसी को कुछ पूछना है उसके बारे में? Would you like to ask any questions regarding that? Yes, anyone has any sort of questions? No sir. No sir. If you have even a single No. query, you can ask me. Okay, let's go for the next. चलो, so last time मैंने आप लोगों को रूल्स बताया था, मैं एक और बार रिवाइज कर रहा हूँ just in brief, बहुत ही शॉर्ट में. Then we are going to go ahead. Okay, so last time we have seen here singulars and plurals, and that singular plural rule was saying that for most of the plurals we are going to put the s and it becomes plural. ज्यादातर हम लोग क्या करते थे बचपन से लेके अभी तक के कि हम लोग खाली प्लूरल के लिए बनाने के लिए हम लोग सिर्फ एस लगाते थे और वो प्लूरल बन जाता था, राइट? बट ऐसा हर जगह पे चलता है क्या? नहीं. No. हर जगह पे सेम रूल चलता नहीं. अब इंग्लिश के अंदर कुछ अलग अलग रूल है जो कि हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो रूल नंबर 1 इज सेइंग द नाउन्स व्हिच आर एंडिंग विद हिसिंग साउंड्स, द प्लूरल विल बी एंडिंग विद es. फॉर एग्जांपल, जो ये साउंड के साथ में एंड होने वाले हैं उनके साथ में प्लूरल एंड होगा es के साथ में. फॉर एग्जांपल, ब्रश ब्रशेस, बॉक्स बॉक्सेस, बस बसेस, क्लास क्लासेस, पोटैटो पोटैटोस, hero heroes, inch inches, fox foxes, watch watches, church churches, mosquito mosquitoes, cargo cargos, etc. Okay, so these are the words which are ending with hissing sounds and plural will be ending with es. ये हम लोगों ने last time देखा था. Next we have seen rule number 2 which was really important. Rule number 2 was saying the nouns which are ending with f or fe. ऐसे rule यहाँ पे rule number 2 बोल रहा था the nouns which are ending with f or fe plural will be ending with ves. जो भी वर्ड है एफ और एफ ई के साथ में अगर एंड होगा तो उसका प्लूरल क्या बनेगा? वीईएस बनने वाला है. फॉर एग्जांपल, लीफ लीव्स, वाइफ वाइव्स, हल्फ हाफ हल्स, वुल्फ वुल्व्स, नाइफ नाइव्स, थीफ थीव्स, एटसेट्रा. तो यहाँ पर जो वर्ड्स थे वो एफ और एफ ई के साथ में एंड हो रहे थे और उनका प्लूरल क्या बन रहा था वहां पर? वीईएस. ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था. देन वी हैव सीन हियर रूल नंबर 3 एंड दैट रूल नंबर 3 वाज सेइंग द नाउन्स व्हिच आर एंडिंग विद वाई प्लूरल विल बी एंडिंग विद आईईएस. अब जो कि y के साथ में एंड होने वाले हैं उनका प्लूरल क्या रहेगा? IES. फॉर एग्जांपल, बेबी बेबीज, लेडी लेडीज, आर्मी आर्मीज, फ्लाई फ्लाइज, सिटी सिटीज, कंट्री कंट्रीज, ओके, फैमिली फैमिलीज, फ्लाई फ्लाइज, बैटरी बैटरीज, एटसेट्रा. नेक्स्ट एक्सेप्शन इसका बहुत ही काम का था, that the nouns which are ending with ay, oy and ey plural will be ending with only s. For example, tray trays, key keys, donkey donkeys, valley valleys, monkey monkeys, toy toys, boy boys, etc. Ending with ay, oy and ey plural will be ending with only s. Okay, next हम लोगों ने फिर देखा था several words का एक rule. The rule was saying that the several words, whenever we have several words, जब कोई भी हमारे पास में ऐसे words आने वाले इंग्लिश के अंदर
जो कि एक से ज्यादा मिलाकर वर्ड बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल मदर इन लॉ, 3 वर्ड्स मिलाकर एक वर्ड बनाए. मदर इन लॉ मतलब यानी सास को बोलते हैं, करेक्ट. सो मदर इन लॉ इट इज 1 वर्ड. ऐसा वर्ड जो 2-3 वर्ड्स मिलाकर एक वर्ड बनाया है उसको अपन हम लोग क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ. ऐसे वर्ड को अगर हम लोग को प्लूरल अगर बनाना है, so we are going to put that s into the important word and it will become plural. For example, mother-in-law will become mothers-in-law, coughful will become coughfuls, looker-on will become lookers-on, nail clipper will become nail clippers. Same case, shoe rack will become shoe racks, table fan will become table fans, mobile cover will become mobile covers, etc. नेक्स्ट रूल नंबर 5. यहाँ पर रूल नंबर 5 था फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि दूसरे सब्जेक्ट से लिए गए हैं. दूसरे सब्जेक्ट से लिए गए मीन्स व्हाट, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश. इंग्लिश छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट्स को यहाँ पर रिफर किया गया है, वो सब्जेक्ट्स के यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मतलब कुछ वर्ड्स लिए गए हैं जो कि दूसरे सब्जेक्ट के हो सकते हैं. तो वहां पर हम लोग करेंगे क्या, we are going to just use our common sense. The singulars are ending with consonant sounds where the plurals are ending with vowel sounds. सिंगुलर हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में एंड, वॉवल्स के साथ में एंड हो रहा है प्लूरल हमारा. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू सी हियर डेटम, डेटम, फेनोमेनन, क्राइटेरियन, रेडियस, मिलेनियम, मेमोरेंडम, स्पेक्ट्रम, प्लैटिनियम, ये सब जितना भी था कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ में एंड हो रहा था, और वॉवल साउंड के साथ में एंड होता है हमारा प्लूरल. फॉर एग्जांपल डेटा, मेमोरेंडा, क्राइटेरिया, millennia, phenomena, radii, stadia, platina, spectra, मीन्स what vowel sound के साथ में एंड हो रहा था. तो यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम. एनी डाउट्स? यार आप लोग ऐसे मत नो बैठो. सर. आप लोग अगर ऐसे सर, बैठो तो फिर मैं चले जाऊंगा. नो सर. सर ओके, यस. ये वाला एक एक बार समझा सकते क्या? ओके, सिंपल सा है. फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स मतलब यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग दूसरे सब्जेक्ट से लेते हैं वर्ड्स. ये मतलब फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि अभी आपने देखा रहेगा कि हर एक लैंग्वेज का एक अपना हर एक सब्जेक्ट का एक अपना खुद का लैंग्वेज होता है. फॉर एग्जांपल अब जैसे कि डेटा जो वर्ड है, डेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, पर कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाता है ये वर्ड डेटा ज्यादातर. फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मतलब यानी तबाही, बट इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग यूज करते हैं फेनोमेनन. फेनोमेनन ये वर्ड यूज करते हैं, फेनोमेनन, फेनोमेना. सो ये वहां का वर्ड है. अगर ऐसे टाइप के वर्ड अगर कभी आए, पहली बात तो ऐसे आते नहीं जल्दी से, पर अगर एक आधे बार का अगर कभी अगर आया तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि अगर आया तो करना क्या है कि उसका सिंगुलर जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ में एंड होगा और प्लूरल जो रहेगा वो एंड होगा वॉवल्स के साथ में. ओके, तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ तक के देखा था. जैसे कि यहाँ पर डेटम म के साथ में एंड हो रहा है, फेनोमेनन न के साथ में एंड हो रहा है, रेडियस स के साथ में हो रहा है, और ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स है. और जितने भी वॉवल्स के साथ में एंड हो रहे हैं सब लोग प्लूरल है. फॉर एग्जांपल डेटा ए प्लूरल है, फेनोमेना ए प्लूरल, रेडियाई आई प्लूरल. यस नो, वेरी सिंपल. यस. तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था. इसके अंदर अगर आप लोगों को अगर कुछ पूछना है कि जलन, कटन, सूजन, दुखन, भाई किसी का कुछ है नाटक विटक, किसी का कुछ पूछना है? नो सर. चलो यहाँ तक No, के sir. हमारा हो चुका था, राइट. So if you have any questions even you can ask me. Next one, now no rules. अब जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बोला था कि आपको एक आधा गधे का बच्चा मिलेगा. हमारे यहाँ पे बहुत है, हमारे पूना में बहुत है. एक ढूंढेंगे ना तो ऐसा 1000 मिलते हैं. एक ढूंढने जाएंगे अगर आप लोग तो आपको ऐसा 1000-1500 ऐसे मिल जाएंगे जगह पे, चौक में खड़े हुए मिलेंगे. आप जब जाएंगे ना इंग्लिश पढ़कर मेरे यहाँ से तो आपको अब बोलेंगे ए इधर कहाँ जा रहा तू, इंग्लिश क्लास को जा रहा है, तेको क्या आता? क्या पूछेंगे आपको, तेको क्या आता? हालांकि उसको खुद को कुछ नहीं आता है, उसको खुद को कुछ आता नहीं, खुद को कुछ नहीं आता है उसको, पर आपको जरूर पूछेगा तेको क्या आता हो, पूछेगा ही आपको. ओके, मैं आप लोगों को कुछ पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर देना है, प्रोनाउंसिएशन बताना है आपको मुझे. ओके, Okay, sir. YES का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? YES, YES, Yes. यस. Yes. EYES. West. अच्छा, EYES. eyes, आइज. कितना सोचकर बोल रहे हैं, सोचना पड़ रहा है ना. YES मतलब यस एंड EYES आइज होता है, Eyes. ES नहीं होता है वो. तो वहां पे रूल है कि कुछ नहीं है. No. इंग्लिश का फर्स्ट रूल क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट रूल ऑफ इंग्लिश? वो जो गधे का बच्चा है ना वो आपको ऐसा छेड़ सकता है,
तो ऐसे एड़े के नाथ को लगना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बैल लोगों की, छपरी लोगों की, बंडल लोगों की कमी नहीं है, भरपूर है। और मेंढे तो एक से एक है हमारे पास में। कौन है अभी माशाल्लाह ईद आ रही है ना, तो हमारे पास में मेंढे लोगों की कमी है क्या? बकरे घुमाने वाले मेंढे भी बहुत मिलेंगे भी आप लोगों को, आपके घर के आसपास में देखा रहेगा आप लोगों ने, मेंढे लोग मेंढा घुमा रहे, देखा कि नहीं? यस सर। गलत बोल रहा हूँ मैं? और उससे बड़े मेंढे कौन है मालूम है? छोटी सी एक बात है बताकर फिर मैं आगे चलता हूँ। मैंने अभी जब जा रहा था मैं सुबह पढ़ाने के लिए, जब मैं बाइक लेके नीचे निकला तो जैसे मैं चौक में पहुंचा तो मैंने वहां पर क्या देखा मालूम है? जादू देखा मैंने उधर। एक उधर लिखा हुआ था, एक हिस्सा 5400 और पूना के बाहर 1300 रुपए। कौन सा वाला अच्छा है? पूना से बाहर है कि नहीं? कितना इजी, 1300 रुपए दो, पूना के बाहर की कुर्बानी, अपन छुट्टे। सबसे बड़े गधे के बच्चे वो ये हैं जो 1300 वाला सिलेक्ट करेंगे। सॉरी टू से दिस। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसी बात? उसकी वजह है क्योंकि चोर भुरटे रहते ये जो 1300 रुपए की बात करते हैं। क्योंकि मुझे तो इतना अच्छा आता नहीं है, क्या मैथमेटिक्स मेरा इतना अच्छा नहीं है, पर खैर आप लोगों में से कुछ लोगों को रहेगा जो यहाँ पे कॉमर्स वाले हैं। कॉमर्स के नहीं भी अगर रहेंगे तो आपको हिसाब तो आता ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग कुछ हिसाब लगा कर देखते हैं। चलो देखते हैं एटलीस्ट अपने को कुछ आता कि नहीं आता। थोड़ा सा दिमाग यूज करो, एकदम बेवकूफ बन के ढक्कन बन के जिंदगी मत गुजारो। गेटिंग इट? थोड़ा सा इज्जत के साथ में, तमीज के साथ में जिंदगी गुजारो। यहाँ पे लिखा हुआ था 1300 रुपए में हिस्सा। मुझे एक बात बोलो, बफेलो आप लोग लेकर आएंगे हिस्सा करने के लिए तो कम से कम बफेलो कितने की मिलती है? कम से कम कितने की मिलती है? 30-40 हजार सर। 40 कम से, चलो गरीब लोग की बफेलो 30,000 रुपए की अपन ने मान लिए। 30,000 के अंदर अपन एक बफेलो में 7 हिस्से होते हैं, तकसीम किया मैंने उसको 7 से, डिवाइड बाय 7, कितना बैठ रहा है एक हिस्से का? 4285। 4200। 285 भी ऊपर के छोड़ दो, मतलब यानी एक हिस्से का क्वांटिटी वहां पर बैठता है 4000। यहाँ पर उसका कैलकुलेशन आ रहा है 4000। मुझे एक बात बताइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे एक बात बताओ आप लोग कि 4000 रुपए में एक हिस्सा बैठ रहा है तो 1300 रुपए में कौन से साहब दे रहे हैं आपको भाई? 1300 को मैं अगर आप लोग को अगर मल्टीप्लाई करके बताऊं 7 से तो उसका कैलकुलेशन होता है 9100। 9000 में अपने बाप ने खरीदा था क्या? 9100 में अपने बाप को मिली थी क्या? थोड़ा सोचने वाली था, मतलब भेजा यूज ही नहीं करते। अरे अपने को टेंशन नहीं पूरा के बार मैंने हिस्सा देता ना, मैं सुबुकदोश हो गया, अपनी ईद हो गई, अपनी कुर्बानी हो गई। अरे वो कुर्बानी होती ही नहीं है। टेल मी, मुझे लाके दिखाओ। एक काम करता मैं 2000 रुपए देता, कहाँ पूना में बोलो डिलीवरी दे मेरे को लाके दे सकता है बंदा? एक्चुअली वो कुर्बानी होती ही नहीं है, पर बैल के ऐसे चल रहे हैं। अरे बोले हमारे हाफिज साहब बेच रहे लेना 1300 रुपए का हिस्सा, गलत थोड़ी बेचेंगे उन्हें। अरे गलत नहीं बेचेंगे, उल्लू बना रहे हाफिज साहब, क्योंकि हाफिज साहब को कमीशन मिला हुआ है उसके पीछे। अब मेरे को ऐसे लोग मिलते नहीं, वरना तो अपन नंगा कर दिए थे उनको। यस नो सर एक बात पूछ सकता हूँ? 200 रुपीस कमीशन देता पर हेड। आई गेटिंग द पॉइंट, मींस व्हाट? सी हेलो यस यस जी सर, यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है इसके अंदर कुछ जेन्युइन भी होते हैं सर। जैसे ये जो इतना सस्ता जो पड़ता है ना सर, वो उसका रीजन एक ये भी होता है, जो अक्सर जो कुर्बानीज होती है ना वो बहुत रूरल एरियाज के अंदर होती है और वो बहुत बल्क में होती है सर। तो बल्क में होने की वजह से जो जानवर ना बहुत काफी सस्ते में भी मिलता है, और रूरल एरिया में होने की वजह से हाँ तो बहुत ज्यादा बल्क में, यानी 1000-2000 जो बफेलोज होते हैं ना, तो उसका रेट उनको बहुत कम में मिलता है। तो बहुत यानी वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं और वो रिकग्नाइज बहुत कम होता है वैसे प्रूफ मदरसे करके वगैरह। दिखा सकते हैं सर आप मुझे? क्योंकि वो मैं एक जानता हूँ रहमान फाउंडेशन, जो हमारे मैं फाउंडेशन की हजरत बात नहीं कर रहा मौलाना। हूँ सर, मैं खुद ऐसे फाउंडेशन से, बहुत सारे फाउंडेशन को मैं जानता हूँ। मैं फाउंडेशन की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आप प्रूफ करके दिखा सकते हैं मुझे वैसा? जी, क्योंकि वो हमारे हजरत जो है हजरत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमान, उनका रहमान फाउंडेशन है, वो 1500 रुपए पर हिस्सा ये है। तो मुझे उसका नॉलेज है, बाकी दूसरे का जो इंडिविजुअल जो करते हैं उसका कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ बाबा, बट मेरा काम था सिर्फ आप लोगों को आगाह करना, बाकी का आप लोगों के ऊपर है। और ये यहाँ पे नहीं, हज के अंदर भी होती है। क्यों? क्योंकि जब, अब आपको क्या बताऊँ, बाद में देखते हैं, खैर
आप लोग, मेरा काम था आप लोग को आगाह करना, बाकी आपकी मर्जी है कि आप लोग कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो जरा थोड़ा सोच समझ के करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इतने कम में तो मुश्किल है। प्रूफ करके उसको बोलो कि भाई प्रूफ दिखा मेरे को चाहिए, तो ठीक है मेरे को लेकर जाओ, जहाँ पे मांगता रहेगा ना, बोले अफ्रीका में देते, बोले हिस्सा तो अफ्रीका में जाएंगे अपन, वहाँ से लेकर आएंगे, पर मेरे को दिखाओ करके, ओके? क्योंकि ऐसा होता बीता नहीं, बी वेयर ऑफ इट। चलो, सो बाय द वे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, तो ऐसे लोग मिले तो उन लोग को इग्नोर मारने का। व्हाई? बिकॉज इन इंग्लिश देयर वी हैव द फर्स्ट रूल एंड दैट रूल इज सेइंग नो रूल्स। मींस व्हाट? इन इंग्लिश द फर्स्ट रूल इज सेइंग रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। इंग्लिश के अंदर हर एक रूल टूटता है, यस नो? इंग्लिश के अंदर हर एक रूल टूटता है। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अभी आप लोगों को मराठी आती है, राइट? आप लोगों को मराठी आती है ना? तो ऐसा ही कहा कोई हाँ, अगर सर। एड़ा अगर आप लोगों को मिलेगा ना, तो उसको बोलने का भाई व्हाट इज रैबिट इन मराठी? मराठी That's what? Sasa. ससा। Correct. And what is fish in Marathi? That's what? मासा मासा Masa. अब यहाँ पे भाई मसला ये आ रहा है, मेरा मसला ऐसा है कि दोनों के लास्ट में आ रहा है सासा। रैबिट रहता है ग्रास के अंदर और फिश रहती है वाटर के अंदर। वाटर। या तो देखो दोनों को ग्रास में छोड़ो, या तो फिर दोनों को पानी में छोड़ो, चलता? नहीं नहीं नहीं, सर। ऐसा करो ना प्लीज, ऐसा क्या भी हमारे लिए नहीं करेंगे, प्लीज 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 करेंगे। वाई? ऐसा क्यों? दोनों के लास्ट में सा क्यों आ रहा है? ये वाटर में, ये पानी में, सर ये पानी में, ये घास में, दोनों के लास्ट में सा क्यों आ रहा है? इज देयर एनी रूल? नो No, sir. देयर इज नो, अल्टीमेटली देयर इज नो रूल। सिंपल। इंग्लिश के अंदर भी एक रूल ऐसा आता है कि वहां पे कोई रूल वगैरह कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी हियर CUT cut, BUT but, NUT nut, Nut. MUD mud, and what do you mean by PUT? Put. पट होता क्या? Put. आगे सहेली पट नहीं होता उन्हें, पुट होता है वो। Exactly. So what? Not put, that's what puts. तो यहाँ पे पुट क्यों है? There is no rule. वहाँ पे कोई रूल ही नहीं है। Same case in English we have a rule. That rule is saying that no rules. अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जहाँ पर आके हमारे पास में एक आता है no rules वाला रूल, ओके? No rules are there. तो यहाँ पे कोई रूल होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दैट चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। हमारे यहाँ पे कुछ लोग और अलग भी होते हैं। चाइल्ड मतलब है नहीं बच्चा, बराबर ना? चाइल्ड मतलब है नहीं बच्चा, चिल्ड्रन मतलब है नहीं बच्चे। हमारे इधर क्या करते हैं, उसके अंदर भी और एस लगाते हैं, बच्चा, बच्चे, बच्चे, चे। क्या बात है। ऐसा मेरी इंग्लिश। So if you see there, you will find there such kind of people are there, they are committing mistakes over here. So child का plural already children है, क्यों है? वहाँ पे कोई रूल नहीं है। For example, foot, the plural form of foot is feet. There is no rule. Same case, for example, the mouse, the plural form of mouse is what? Mice. There are no rules. यहाँ पे रूल खुद बोल रहा है कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग खुद बोलते हैं यहाँ पे कोई रूल वगैरह नहीं है। मैन का मैंस क्यों नहीं होता है? ऐसा बोल भाला है तो उसको बोलने का भले, वहाँ पे कोई रूल है ही नहीं। Okay, there are no rules in English. For example, man, plural will be what? Men. Woman, women. Child, children. Tooth, teeth. Goose, geese. Mouse, mice. So we have over here no rule. यहाँ पे रूल खुद बोल रहा है कि ऐसा यहाँ पे कोई रूल वगैरह नहीं। अब आप लोग बोलेंगे फिर समझने का कैसे? Simple. Only reading and speaking can understand you. Only reading and speaking can make you to understand over this. Okay, so ultimately you're going to work here with reading especially. आप लोगों को reading के ऊपर focus करना पड़ेगा, then only you can remember all these things. Okay, so here are what? No rule. Man, men. Tooth, teeth. Woman, women. Goose, geese. Child, children. Mouse, mice. Foot, feet, etc. ऐसे कुछ और words भी आ सकते हैं but बहुत ही कम आते हैं। Next one, rule number 7 is there, which is really very important, and that rule is saying there are some nouns in English which are singulars equals to plurals. अब इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन है जिसका सिंगुलर भी वही है और उनका प्लूरल भी वही है। सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। फॉर एग्जाम्पल, फिश का प्लूरल फॉर्म फिश ही होता है। अपने इंडिया में अपन बोलते हैं फिशेस, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। द प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश इज फिश ओनली। प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश इज फिश। अरे ये आपके पास में नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर लोग गलती करते हैं। ऐसी बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर लोग गलती करते हैं, बोलते हैं आई एम फ्रॉम द कॉन्वेंट स्कूल, और अंदर से पूरे डब्बे रहते हैं एकदम खाली। सो लेट मी जस्ट शेयर विद यू हियर दैट डे आई टोल्ड यू दैट फ्रूट, आपके घर पे मेहमान जब लोग आते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं उनको? फ्रूट लीजिए, मतलब नहीं फल लीजिए। आप उनको बोलते हैं क्या फले लीजिए? नो सर। नो सर। फ्रूट्स बोलते हैं, बोले फले लीजिए।
फळ घ्या म्हणतो आपण, आहे का नाही? फळे घ्या म्हणतो का? नहीं नहीं अजीब बात नहीं बोला था। नहीं। म्हणजे काय मतलब यानी क्या था इधर, फ्रूट का प्लूरल फॉर्म फ्रूटी होता है, फ्रूट्स नहीं होता है। एंड दैट डे आई हैव जस्ट प्रूव्ड यू, ये मैंने आप लोग को उस दिन बताया था फ्रॉम एन अमेरिकन बुक। दिस इज एन अमेरिकन बुक, ये एक अमेरिकन बुक है, तो इसके अंदर से मैंने आप लोग को बताया भी था दैट फ्रूट का प्लूरल फॉर्म फ्रूट ही होता है, फ्रूट्स होता नहीं। अब अमेरिकन लोग खुद क्या लिख रहे हैं हम लोग को वो देखना है, अपने को अपनी होशियारी कहाँ पे मारने का, ओनली हिंदी मराठी उर्दू के अंदर। क्यों? क्योंकि वो अपने बाप की जबान है। नेक्स्ट, फ्रूट, द प्लूरल फॉर्म ऑफ फ्रूट इज फ्रूट ओनली। इतना बड़ा चैप्टर का नाम दिया, फ्रूट दिया है उसने, फ्रूट्स नहीं दिया। हमारे यहाँ पे फ्रूट्स लिखते हैं एंड टीचर्स भी बोलते हैं फ्रूट्स 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 लेकर आए बेटा, बेटा फ्रूट्स लेकर आए आपने, वाह बेटा कहाँ जा रहे हैं आप, फ्रूट्स लेकर आना है हम लोगों को, वाह 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 वाह। लाली मैडम, वो फ्रूट्स नहीं है, वो है fruits. Is that clear? Next one. Yes. So the plural of some nouns are what equals to the same. कुछ ऐसे nouns होते हैं इंग्लिश के अंदर जिसका सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। Now for example, if you see here, fruit, fruit, sheep, sheep, okay, sheep, sheep. अच्छा, मेंढा, मेंढे को क्या बोलेंगे? sheep बोलते हैं, right? मेंढी, मेंढी को क्या बोलेंगे? एक आधी रही तो नीलोफर मेंढी। क्या बोलेंगे मेंढी को इंग्लिश में? ईव बोलते हैं इसको। लाइम लाइफ, लाइम लाइम बच्चे को बोलते हैं ना सर, तो लैम तो बच्चे को बोलते हैं, मेंढी को बोलेंगे ईव। ओके, थोड़ा सा ध्यान दीजिए देवी और सज्जनों, यहाँ ध्यान दो। इफ यू सी द ई, डब्ल्यू ई, ईव मतलब ईव, ईव ईव, ईव का मतलब होता है मेंढी। ओके, मेंढी को बोलते हैं हम लोग ईव, मेंढी मतलब ईव। समीर खान, शाहरुख, प्लीज पुट अप योर रोल नंबर्स जल्दी जल्दी। ईव मतलब है नहीं मेंढी, एंड सेम केस ईव, ईवी ईव, मेंढिया इवनिंग नहीं, ये इवनिंग वाला ईव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ई कैपिटल किया है, ध्यान दीजिए। ये माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को हम लोग ईव बोलते हैं। एडम्स वाइफ वाज देयर, ईव, द फर्स्ट वुमन ऑन द अर्थ वाज ईव, एंड ईवीई फुल स्टॉप, इसका फुल फॉर्म है इवनिंग। समझा? यस सर, समझा? तो एक होता है ईव, यहाँ पे ई स्मॉल होना चाहिए। ईव मेंढी को बोलते हैं, ई कैपिटल किया तो माँ हव्वा अलैहिस्सलाम, और ये ईवीई फुल स्टॉप इवनिंग का बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इवनिंग का। Getting it? So like this we Yes, have sir. some of the other words too. Now in English there is a rule, that rule is saying that some singulars are equals to plural. वहाँ पे singular भी वही है, plural भी वही है। For example, sheep, sheep, deer, deer, salmon, salmon, fish, fish, aircraft, aircraft, fruit, fruit. तो मतलब fruit का plural form भी fruit ही आएगा, fish का fish आने वाला है, salmon, salmon, sheep, sheep, deer, deer, fish, fish, aircraft, aircraft, fruit, fruit, etc. Getting it? So कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल वही आने वाला है। Now I'll tell you one more thing, आपको इसके लिए रीडिंग करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एक चीज अब आप लोग को, फॉर एग्जांपल मैंने आपको जब फर्स्ट सेशन में आपको मैंने एक बात पूछा था, आप लोग को गाली देना आता है क्या? आप लोगों ने बोला था हाँ एकदम लेटेस्ट वाले भी आते हैं अपने भाई ना, शाहरुख भाई, इमरान भाई, नेमत भाई, उस्मान भाई आते हैं ना अपने को एकदम। बोले 2022 का भी कोटा फुल है, बोले सर मेरा तो ऑलरेडी बुक करके रखा हुआ मैंने, कहाँ पे जरूरत पड़ गई तो देने की। सो गाली देना आता है कैसे? सुन सुन के आता है क्या? नहीं। सेम केस रीडिंग एंड लिसनिंग विल हेल्प यू अ लॉट। मैंने आप लोगों को यूट्यूब का लिंक वगैरह दिया था मेरा, राइट, जहाँ पे मैंने टेप स्क्रिप्ट्स डाला हूँ। जो बंदे ने टेप स्क्रिप्ट्स किया उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि वो बंदा इंग्लिश बोलेगा इंशाल्लाह। जो बंदे ने टेप स्क्रिप्ट्स किया, और जिसने टेप स्क्रिप्ट्स नहीं किया उसको इंग्लिश नहीं आता है, उसकी भी मैं गारंटी लेता हूँ, उसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टेप स्क्रिप्ट्स आपका 50% स्पोकन इंग्लिश है। रिमेंबर दिस। टेप स्क्रिप्ट्स क्या होता है, कैसे होता है, मैं ग्रुप पे वापस डालूंगा आज क्लास के बाद में, एक बार जाके देखना उसको, और वो उसको जितना ज़्यादा हो सकता है सुनो पढ़ो, सुनो पढ़ो, सुनो पढ़ो, बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं आने वाला है। नेक्स्ट वन, नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव अ वर्ड एयर हॉस्टेस। what could be the plural form of air hostess? एयर होस्टेस Correct. Air hostess का plural form भी air hostess ही रहेगा। Can we say air hostesses? नो सर, नो No, it will become absolutely nonsense. So air hostess will be air hostess. For example, lioness. What is the plural form of lioness? लाइनस Correct. Plural form of lioness is what? Lioness only. We can't say lionesses. Same case, for example, authoress. Authoress का plural form क्या रहेगा? अथरे Authoress only. Getting it? For example, waitress. लड़की वेटर रहती है ना, उसको waitress बोलते हैं. The plural form of waitress is what? Waitress only.
So there are some words in English which are singulars are equals to plural. कुछ ऐसे words हैं English में जिनका singular भी वही है और उनका plural भी वही है. Lioness, lioness. Empress, empress. For example, empress, emperor की wife होती है ना empress. इमरान भाई garden वाला empress, empress garden, empress, empress. So plural form of empress is empress only. Is that clear? Yes sir. तो empresses नहीं बोलेंगे. For example, अपने पास में बहुत सारे लड़के prince है अपने क्लास में. The plural form of prince is only Prince. प्रिंस. उसको pronunciation prince ही आएगा. Princess नहीं बोलेंगे. Princess बोले तो औरत हो जाते फिर वो लोग. Okay. Next one. Rule number 8. Rule number 8 is saying always plural nouns. अब यहाँ पे कुछ इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल रहते हैं, उनका सिंगुलर आता ही नहीं है. हमारे यहाँ पे उसमें भी गलती करते हैं. Now let me show you here. There are some nouns in English which are always plural because they don't have a singular form. For example, cattle. Cattle मतलब ही नहीं, भेड़ बकरी वगैरह एक साथ में जाते रहते, देखा रहेगा आप लोगों ने, देखो अपने ऐसे मेंढे जाते रहते. झुंड. हाँ, right. So that मेंढे इतने सारे जाते हैं ना एक ग्रुप के अंदर. A flock of ships, okay, a flock of sheep or a herd of sheep. So that herd is called cattle. एक साथ में दो गाय बैल वगैरह अगर जा रहे रहेंगे तो हम लोग उनको क्या बोल सकते हैं? Cattle. हम लोग सिंगल बफेलो को कैटल बोल सकते हैं क्या? No, सिंगल sir. काउ को No, कैटल no, बोल sir. सकते हैं? No sir. No. Cattle will be what? Minimum two. Minimum two. So that's what cattle means. What it is already plural. हमेशा plural होती है cattle. Next one, people. क्या मैं अपने आप को people बोल सकता हूँ अकेले को? No sir. No. क्या मैं आपको No, sir. अकेले को people बोलूँगा क्या? नहीं No. sir. So if you see there, people is what? Minimum two. कम से कम दो लोग रहेंगे. That's called people. Okay. So people is already plural. हमारे इधर क्या करते हैं, अपनी बहन की पिक्चर देख के आते हैं सलमान खान की. Great peoples. आहा. Peoples. हमारे यहाँ पे टीचर्स लोग भी बोलते हैं. Sorry to say this. Yes or no? Yes Peoples sir. बोलते हैं. सुना रहेगा आप लोगों ने कॉलेज के अंदर आपके. Yes sir. They say peoples, which is absolutely wrong. People is already plural. People का singular क्या है? Person. People. People का singular क्या है? Person है. Person. People already plural है, उसके अंदर और जबरदस्ती घुसाड़ने की क्या जरूरत है? So that people is already plural. Next one, binoculars. अभी यहाँ पे binoculars के अंदर क्या आएगा? S लगेगा. हमारे यहाँ पे binocular बोलते हैं, which is wrong. That's what binoculars and binoculars दोनों pronunciation सही है. Why? Because it's a pair. 1 2 1 2 1 2. It's a pair. वो जोड़ी है. इसके लिए वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? We are going to put their S. Why? Because it's a pair. 1 and 2. 1 and 2. बड़े बड़े डॉक्टर्स है. सिस्टर सीजर दो, सिस्टर सीजर दो. सीजर बोलते हैं, which is absolutely wrong. It must be scissors. Why? 1 and 2. क्योंकि उसके दो रहते हैं ना. 1 and 2. 1 and 2. Scissors. 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 So we must call it scissors, not scissor. Scissor बोलते हैं जो कि गलत है. आप लोग बोल रहे होंगे क्या नवा नवा ला रहा? नवा नहीं है, ओरिजिनल है ये. आपको मैं प्रूफ करके बताने वाला हूँ डायरेक्ट कभी. नेक्स्ट वन, जीन्स. हमारे यहाँ पे क्या रहता है? रप्पी क्या होता है? अम्मी मेरे जीन की पैंट किधर है? तो जीन की पैंट नहीं है वो. क्या है वो? जीन्स. व्हाई? इट्स अ पेयर. 1 2 1 2. एक पैंट एक पैर में पहनते क्या खाली? एक साइड से नंगे रहते क्या? अब हमारे यहाँ पे क्या होता है मालूम है? एमजी रोड पे जब फॉरेनर लोग आते हैं ना तो वो लोग देखते हैं एमजी रोड पे ऐसे लगा हुआ रहता है पैंट. एमजी रोड पे लिखा हुआ रहता है पैंट 500 रुपीज. तो बेचारे फॉरेनर भी सोचते हैं, ओ माय गॉड, इंडियन पीपल आर वेयरिंग ओनली फ्रॉम वन साइड इज नेकेड. क्या सोचते हैं बेचारे वो लोग? बोलते हैं अरे यार इंडिया के अंदर शायद एक साइड से लोग पहनते हैं, एक साइड से शायद नंगे रहते हैं. इट इज नॉट पैंट, इट इज व्हाट? पैंट्स. पैंट्स लिखना चाहिए. जीन्स एस लगाना चाहिए. व्हाई? इट इज अ पेयर. 1 2 1 2. इट्स अ पेयर. वहां पे जीन्स का पेयर आएगा. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल इट जीन्स पैंट्स. नेक्स्ट, पायजामाज. ये पायजामाज अपना पायजामा नहीं है कुर्ते वाला. दिस पायजामाज आर व्हाट? नाइट सूट को पायजामाज बोलते हैं. शलवार को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? शलवार होती है ना, शलवार क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पुणे का एकदम अपने इंडिया का एक रेप्यूटेड क्लास है. नाम नहीं लूंगा मैं उसका. नाम नहीं लेना चाहिए किसी का वरना अलग हो जाएगा. यस, ट्राउजर्स बोल सकते हैं. ट्राउजर्स बोल सकते हैं. ओके. तो उसके सब में जो उसने लिखा हुआ है शर्ट को कमीज लिखा हुआ उसने. बोला रे बदतमीज. कौन से फॉरेनर को समझ में आएगी कमीज? कोई फॉरेनर को समझ में आएगा क्या? आई एम वेयरिंग अ कमीज. द फॉरेनर विल से व्हाट द शिट इज दिस कमीज? आई डोंट अंडरस्टैंड इट. सो
Kameez is not a correct word. It's an Indian and Urdu word. Next one, spectacles. Why 1, 2? 1, 2. Spectacles, it is will be always plural. वहाँ पे s लगाना ही पड़ेगा. Why? Because it is always plural. Yes or no? Spectacles. The word spectacles is always plural. Any doubts? Any doubts? No, sir. No, Simple. sir. Next one, same case if you see here. That's what? Trousers. Trousers. Now what do you mean by trousers and pants? दोनों में फर्क क्या है? Trousers में और pants में. It's a pair. 1 and 2. We are going to say there trousers. We are going to put there s. S लगाना ही पड़ेगा. नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा. So trousers, it's a plural form. Yes. Why do we say trousers? Jeans. Pants. It's a pair. Correct? Trousers के और Yes, sir. pants में क्या फर्क है? What's the difference between सर trousers and ट्राउजर्स pants? ऑफिशियल मतलब फॉर्मल पे यूज होता है ना सर ट्राउजर्स, And pants? और informal कैजुअल पे पे। भी यूज कर सकते हैं ना सर पैंट. तो दोनों में फर्क क्या रहता है? ऐसा मतलब कैसे दिखते दोनों भी? सर ट्राउजर्स के ऊपर मतलब शर्ट टी शर्ट वगैरह सर मतलब नॉट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, पर जीन्स के ऊपर really? तो दैट वुड बी अ रीजन. Actually, pants and trousers both are the same. Pants and trousers both are the same. दोनों भी same है. तो फिर difference क्या है फिर दोनों में? Pants में trousers में. Pants is an American word. अरे पीछे के बात ना को सुनाओ मेरे को मेरे घर की. उन लगाओ क्या? उनको लगाओ क्या? वो चाह रहे क्या? हल्दी को जा रहे क्या? यहाँ ध्यान दो. Next one. So pants is an American word and trousers is a British word. Trousers जो है वो British word है और pants जो है वो American word है. बाकी कुछ भी फर्क नहीं है उसके अंदर. So American English, British English के अंदर थोड़ा सा फर्क आता है. Any doubts to anyone? No, sir. नो सर. Any questions? No, sir. Good No, one. sir. So always we have these are the words which are always plural. Now for example I can give you some of the good words. So for example always plural वाले जो word है ऐसा कुछ ऐसे words आएंगे आप लोगों को जो कि हमेशा plural होते हैं. For example shorts. Shorts हमेशा plural होती है. Next one pants. Next glasses. है कि नहीं? Glasses. Next one sunglasses. Next shades. Boys get ready. मुझे आंसर चाहिए इसका. Next goggles. हमारे यहाँ पे रप्पी क्या बोलता है? वो मेरा गॉगल किधर है? मेरे गॉगल किधर है? तो वो गॉगल नहीं, क्या है वो? Goggles. Goggles बोलते हैं उसको. गॉगल नहीं बोलते हैं उसको. बोलेंगे goggles. Sleeper. Very nice. वो sleeper नहीं है. क्या है वो? Very nice. Flippers. Sleepers नहीं है, उसको बोलेंगे flip flops. फ्लॉप. करेक्ट. उनको बोलेंगे flip flops. हमारे इधर क्या बोलते हैं उसको? स्लीपर बोलते हैं. स्लीपर रॉन्ग वर्ड है क्योंकि उसके अंदर अपन सोते नहीं ना, पहनते उसको. So goggles. Okay boys, what's the difference between shades, sunglasses, goggles? तीनों में फर्क क्या है? Shades, sunglasses. Glasses मतलब है नहीं नॉर्मल अपने आंखें, आंखें वाला जो होता है ना, आंखें खराब होती है तो मतलब नहीं, आंखें मतलब दुखती वगैरह. पावर ग्लासेस. बैटरी. Shut up. So sunglasses, shades and goggles में फर्क क्या है? What's the difference between sunglasses, shades and goggles? Ziaur Rahman. Sunglasses, shades and goggles. तीनों में फर्क क्या है? सर सनग्लासेस जो हम लोग सन धूप में जो पहनते हैं उसको सनग्लास. और shades जो छाँव में पहनते हैं. नहीं सर ऐसा नहीं. सनग्लासेस इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सन. आगे. I think goggles is something for और fashion. and shades. डिफरेंट कलर्स के होते हैं शेड. Correct. Now let me tell you here. Sunglasses क्या होते हैं? थोड़े डार्क होते हैं वो. Especially sun वगैरह के अंदर यूज करते हैं. As he said, is correct. But dark होते हैं वो. डार्क कलर के रहेंगे ना, उनको हम लोग बोलेंगे सनग्लासेस. शेड्स मतलब यानी क्या होता है? उसके अंदर डबल कलर आते हैं. देखो कांच में डबल कलर होती है. That's what shades. And goggles क्या होते हैं? चपटे आते हैं, आजकल के अंडे पहन के घूम रहे. देखो चपटे वाले देखा रहेगा आप लोगों ने, चौक बीक में खड़े हुए रहते हैं विमल पंटर. हाँ, तो वो जो चपटे वाले पहन के घूम रहे हैं ना, वो दैट्स व्हाट गॉगल्स. ओके. वैसे गंदे अंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चौक का गंदा अंडा रहता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉटन एप्पल बोलते हैं उसको इंग्लिश में. सड़ा हुआ गंदा अंडा.
हाई लेवल के इंग्लिश में बोलते हैं. मीन्स व्हाट? एन अनप्लीजेंट पर्सन. लड़की के लिए भी यूज कर सकते हैं हम. एक आधी गंदी अंडी रहेंगी ना, उसके लिए यूज कर सकते हैं आप लोग ये. मीन्स व्हाट? ए वेरी अनप्लीजेंट पर्सन, मतलब बहुत ही छपरी आदमी बोल सकते हैं आप लोग. फॉर एग्जाम्पल, एक आधे आपके गले में रहेंगी ना, एक आधी आपके गली बिल्ली में रहने के लिए रहेगी, एक आधी कोई बिल्डिंग में आपके खतरनाक टाइप की औरत, गालियां भी एकदम मजबूत देती है. सो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? Rotten apple. नहीं, उसके लिए अलग वर्ड है, उसको बोलते हैं हम लोग अमेजन. मीन्स Amazon. पावरफुल वुमन. आप लोग बोल सकते हैं माई सास इज एन अमेजन, मेरी सास बहुत खतरनाक औरत है. सकते हैं आप लोग. सो माई मदर इन लॉ इज एन अमेजन, मतलब इन अ वेरी पावरफुल वुमन, खतरनाक टाइप की औरत. गेटिंग इट? बोल सकते हैं. Yes, sir. सो लाइक दिस वी आर. नहीं, मर्द को नहीं बोल सकते. वाइफ को हाँ, वाइफ को बोल सकते, पर अगर उसको समझा नहीं तो, अगर उसको कभी समझा तो फिर कुकर आपके सर में. जबान में बोलना नहीं क्या हुआ था वो. गेटिंग इट? चलो. सो फ्लिप फ्लॉप्स हमेशा दो होती हैं. सो वी आर गोइंग टू पुट देयर एस. ओके, ये सॉक क्या होता है? पुटिंग में सॉक पता है क्या? Pair of socks. करेक्ट. सब भीगा. मैंने Soap. सक नहीं बोला था, मैंने सॉक बोला था. सॉक्स का सिंगुलर फॉर्म है सॉक्स, का सिंगुलर फॉर्म है सॉक. अपन सॉक्स बोलते हैं ना, सॉक्स, मोजे. Yes or no? It's a plural. That's why we are going to always put their s. Next, last round but not the least one. Last round हमारा बोल रहा है, last rule बोल रहा है the nouns which are containing s but they are always singular. अब कुछ ऐसे words हैं जो कि हमेशा singular होते हैं. Now we have some words in English which are ending with s. कुछ ऐसे words हैं जो कि ending हो रहे हैं s के साथ में, but they are always singular. Why? Because they are especially what? Subjects. वो subjects हैं इसके लिए. वो सब्जेक्ट्स हैं इसके लिए, वो हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, भले से वो एस के साथ में एंड क्यों नहीं हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स. रिपीट, इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट वन, फिजिक्स. नेक्स्ट वन, Maths. civics. Next, mathematics. So mathematics is what? Maths. Next, statistics, ending with s. Yes or no? Electronics, accounts, Art. etc. Arts. So ये जितने भी subjects हैं, they are ending with what? S. But they are what? Always singular. They are always singular. Any doubts to anyone? For example, Yes, sir. electronics, civics, physics, mathematics, hydraulics, politics, pneumatics. Yes or no? Electronics, economics, politics. ये जितने भी words हैं, they are ending with S, but they are subjects. That's why they are only what? Singular always. Physics, economics, electronics, mathematics, accounts, statistics, etc. Any doubts to anyone? Simple No, सा sir. rule है. S के साथ में end हो रहा है, but they are always singular. They are always singular. Any doubts to anyone? No, sir. No sir. Good one. आज मैंने आप लोगों को एक ये सेंड किया था. अब आप लोगों ने देखा रहेगा कि नहीं देखा रहेगा मालूम नहीं. मैंने आप लोगों को कुछ फाइल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड किया था आपके ग्रुप पर. मैंने देखा आप लोगों ने वो? ग्रामर्स का एक फाइल था. बॉयज लोगों ने नहीं देखा रहेगा. क्यों? क्योंकि मैं लड़की नहीं हूं ना. लड़की ने भेजी ना से कोई मैसेज तो बहुत जल्दी देखते हैं अपन. यहाँ ध्यान दो. मैंने आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट सेंड किया, ऐसे कलर के अंदर है वो, ये वाले कलर में, सियान कलर के अंदर है. वो डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे मैंने वर्ड्स दिया हूँ. मैं यहाँ पर भी दिखाने वाला हूँ वो वर्ड्स, बट वो वर्ड्स को याद करना है. वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस ऑन देम. ऑलराइट, नाउ बिफोर वी गो अहेड, आज से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे हमारा sentences. We are going to see the consequences of the sentences and how to make sentences in English easily. We are going to see that. Apart from this one, as you can see here, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं singulars and plurals. हमारा यहाँ पर आज पूरा singular and plural finish हो चुका है completely. Is that clear? समझ में आ रहा है? Yes, यहाँ sir. पे हमारा Yes, sir. singulars and plurals पूरी तरीके से खत्म हो चुका है. Now we are going to make sentences on behalf of these singulars and plurals. अब ये singular and plural के ऊपर हम लोग बनाने वाले हैं हमारे sentences. Now how to make sentences and on singulars and plurals that I'm going to show you today over here. तो उससे बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ. तो कुछ लोग ऐसे हैं कि यार कितने लोगों को सेंटेंस बनाना नहीं आता है? जल्दी फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी. सेंटेंस बनाने नहीं जमता है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि बोलना तो वही होता है ना, सेंटेंस ही बोलना होता है. कितने लोगों को सेंटेंस बनाने नहीं आता है?
यस, अरे सबको आता है, सच में पूछूं मैं? ओके, कुछ लोगों ने टाइप किया था मी मी मी। मी नहीं बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए आई। मी नहीं बोलना चाहिए, आई बोलना चाहिए। ओके ओके, सेंटेंस बनाने नहीं आता है। कुछ लोगों ने हैंड्स भी रेज किए, कुछ लोगों ने टाइप भी किया है। बाकी जो बेचारे सोच रहे हैं कि हाँ मेरे को आता करके, तो उन लोगों को मैं बाद में पूछूंगा, ठीक है? ओके, नाउ बिफोर वी गो अहेड, नाउ स्टॉप कमेंटिंग एंड जस्ट लोअर योर हैंड्स प्लीज। तो जैसे कि भी आप लोगों ने देखा था कि मैंने आप लोग को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताया हूँ इंग्लिश के अलावा भी। तो आज मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसी केस स्टडी दिखाता हूँ, छोटी सी बात है, पर सीखने को लिए बहुत कुछ देगी हम लोगों को। हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार मेरे को इंग्लिश इतनी आ रही है यार, मैं इंग्लिश बोलूँगा क्या है, मेरे को मैं कर सकता क्या, मेरे को आएंगी क्या, मैं इंग्लिश बोल सकता क्या, तेरे को लग रहा क्या मेरे मुंह से, मैं देख कितना बड़ा छापरी है, अरे देख ना तू, मैं तेरे को लग रहा है कि मेरे मुंह से इंग्लिश बोलूंगा मैं। तो ऐसे कुछ लोगों की सोच रहती है। उन लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, नेवर गिव अप। ऐसा मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैं हर एक चीज़ को प्रूव करके दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ओनली द थियोरेटिकल थिंग्स। मैं खाली हवा में बॉम्ब नहीं फोड़ता हूँ जबरदस्ती के। बोले मेरे अब्बा चांद पे गए थे, अरे मैं बोल रहा ना, अरे मैं बोल रहा है, अरे मैं तुम्हारा सर है तो तुम मेरे यकीन नहीं कर रहा मेरा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी बेतुकी 25 रुपए वाली बात मैं बिल्कुल करता ही नहीं। गेटिंग इट? पॉइंट नंबर 1। सो अब मैं आप लोगों को आज एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ। आपको पता है जस्टिन बीबर? Yes, sir. यस सर, हाँ, सब पहचानते हैं उसको, यस है ना? यस सर, उसका फर्स्ट सॉन्ग अभी से 11 साल पहले आया था, बेबी। Yes, sir. सुना था Yes. क्या नहीं? यस सर, हाँ, बेबी। sir. बहुत फेमस हुआ था। अंडे लोग को समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है। उसकी पहली लाइन क्या थी? अरे नहीं बोले, ढोल अच्छा बज रहा करके वो सुन रहा मैं। क्या बाज रहा है? पता नहीं, कुछ तो गा रहा हूँ, उसका कुछ तो भी गा रहा, पर मेरे को क्या कर रहा हूँ, वो गा रहा, अच्छा बहुत अच्छी बात है भाई, मैं तो वो सुन रहा हूँ। आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी से अगर आप लोग 1-2 साल पहले अगर देखते थे इस गाने को यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा डिसलाइक वीडियो जो था वो यही था। सबसे ज्यादा डिसलाइक वीडियो जो था यूट्यूब के ऊपर वो यही था। अभी इसके लाइक्स बढ़ गए हैं, 18 मिलियन हो गए। पहले इसके लाइक्स जो थे वो अराउंड 7 मिलियन थे और इसके डिसलाइक थे 12 मिलियन, 11 मिलियन। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बंदे का पहला वीडियो, इसने पहला वीडियो शूट किया, पहला गाना गाया इस बंदे ने, पहला गाना गाया, पहला वीडियो इसने डाला अपने यूट्यूब पर, और वो यूट्यूब के गाने को इसके सबसे ज्यादा डिसलाइक किया गया। इसके गाने को सबसे ज्यादा डिसलाइक किया गया उस वक्त में। नाउ इफ यू सी हियर 12 मिलियन डिसलाइक्स है वहां पर। अरे अपने इधर तो यहाँ पे इतने व्यूज भी आते नहीं है, उसके इतने डिसलाइक हो गए हैं। नाउ सी हिज सब्सक्राइबर्स, आज उसके सब्सक्राइबर्स देखो, 64 मिलियन सब्सक्राइबर्स है उसके, 64 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इससे सीखने के लिए क्या मिलता है? अगर अपने ऐसा अगर होता था, इम्मू, बबलू, गुड्डू, चुन्नू, मुन्नू, है क्या नहीं? अगर अपने ऐसा अगर होता था ये, तो क्या करता था? अरे बाप रे, वो मैंने पहला गाना डाला है यार, यहाँ तक के पीपल स्टार्टेड स्पिटिंग ऑन हिज फेस इन अमेरिका। मुंह पे उसके थूका भी गया है, मालूम है आपको? लड़के लोगों ने उसके मुंह पे थूका है, बोले तू गे है। उसके मुंह पे थूका है लिटरली। एंड सी वेयर इज ही टुडे। When he came to India, India जैसी कंट्री में आया वो, अपने इधर अपन बोलते हैं अपन गरीब है गरीब है गरीब है। In India he came 3 years ago, 3 साल पहले इंडिया में आया था, and he did the business of 3 billion rupees। 3 बिलियन का किया, लाख करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बिलियन की बात कर रहा हूँ, बिलियन। एक रात के अंदर उसने 3 बिलियन का बिजनेस करके गया है यहाँ से वो लड़का। Now let me tell you only one single thing। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट ये करना चाहता हूँ कि वो बंदे ने पहला वीडियो डालने के बाद में रोया नहीं। उसने वीडियो डालने के बाद में इतने सारे डिसलाइक आने के बाद में उसने छाती पकड़ के रोया नहीं। हमारे यहाँ पे क्या होता, अरे चाचा गए रे, अभी कौन कमाने वाला घर में नहीं रहा रे, अभी चाचा मुन्नू अभी तो यतीम हो गए। हमारे यहाँ पे सबसे पहले रोना स्टार्ट कर देते हैं, सबसे पहले रोना स्टार्ट कर। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इंसान मुझे रोता है। अरे कुछ भी रहने दो, अरे मर भी गए तो भी मत रो। घर वाले मर भी गए ना तो भी रोना नहीं है। तो ये क्या बात कर रहे थे कहीं ने? हाँ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि वो रोने वाली जो आदत है ना आपकी, वो आपको डुबा के रखेगी। सिंपल, इफ ही वुड हैव क्राइड एट द टाइम, ही वुडंट हैव बिकम द बिलियनियर। बिलियनियर नहीं बनता था कभी जिंदगी में वो। आज वो अरबपति खरबपति लड़का हो। और अपन कौन है? अपन ये
अल्ट्रा टू कहाँ रहा रहा टू तेरे वाले में के दावत देंगे ना मेरे को तेरे भाभी भी बोल रहे थे तो तुम अभी खाली वली में खाते बैठो खाली बस अपन उतने में से खाली रज्जे बजा लिए हल्दी लगा लिए मेहंदी लगा लिए बस sorry to say this so ultimately my simple thing was there I just wanted to tell you is what never ever cry whatever the situations are coming to you do not cry अगर आप लोग रोएंगे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे तो रोना मत रोना मना है never ever cry is that clear so उससे आप लोगों को सीख मिलती है कि जब वो ऐसा बंदा जस्टिन बीबर जैसे टाइप का आदमी ऐसा लड़का जिसको इतने सारे डिसलाइक मिले अपन देखते थे तो क्या होते थे अरे बाप रे लोग मेरे मुंह पे थूक रहे हैं मैं तो जाता भी गिटार लेके घर पे बैठ गया होता हूँ पर उसने किया क्या ऐसा नहीं he started working hard and what he became now today okay let's go back आज हम लोग देखेंगे हमारे यहाँ पर sentences बनाते कैसे हैं so how to make sentence in English कैसे बनाना है हमारा अभी fresh ताज़ा singular plural खत्म हुआ है right so we are going to take the help of singulars and plurals अब हम लोग यहाँ पर help लेंगे singulars and plurals की और इसके साथ में हम लोग बनाने वाले हैं हमारे सेंटेंसेस ओके अब सेंटेंस बनाना कैसे अब फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है ये फोन है मुझे बोलना है कि ये फोन है मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा दिस इज अ फोन This is a phone. क्या बोलूंगा मैं इसको This is a phone. दिस इज This is अ a phone. मैं क्या बोलूंगा इसको दिस इज अ फोन अब मुझे पूछना है क्या ये फोन है Is this phone? Is this a phone? इज दिस अ फोन इज दिस A अ phone. फोन क्या ये फोन है नेगेटिव ये फोन नहीं है This is not a phone. करेक्ट दिस इजंट अ फोन Not मतलब phone. यानी आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं नेगेटिव बनता कैसे है मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि मेरी क्लास में अगर आप लोग आए हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को हर टाइप की बॉलिंग पे खेलना सिखाऊंगा मतलब यानी आपको बाउंसर आया तो मुंह पे खाना नहीं उसको उसको भी सिक्स मारने का तो हर एक बॉल पे खेलना आना चाहिए आप लोगों को दैट अगर आप लोगों को कोई भी टाइप का सेंटेंस मिला आपको खेलने आना चाहिए बोलने आना चाहिए उसको वो नहीं तो मालूम पड़ रहा है खाली हमारे इधर क्या होता है हमारे इधर अक्सर जो है ना अक्सर बड़े बड़े आप लोगों ने मैंने देखा है मैनेजर्स लोग डॉक्टर्स लोग बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं अब फॉर एग्जांपल ये फोन आपके सामने से रखा हुआ है क्या नहीं आपके सामने फोन रखा हुआ है अगर उसको सामने वाले पूछना है आपका फोन है क्या तो वहाँ पे हम लोग सिंपली पूछ सकते हैं इज दिस योर फोन क्या ये आपका फोन है इज दिस योर फोन हम लोग पूछ सकते हैं उसको और हमारे इधर क्या करते हैं आते दिस इज योर फोन अरे एड़े चिल्लाने से क्या फोन खुद का हो जाएगा क्या मतलब चिल्लाने से क्या स्टेटमेंट क्वेश्चन में तब्दील हो जाएगा क्या बदल जाएगा क्यों नहीं नहीं स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को उसको जिगजैग करना पड़ता है पर हमारे यहाँ पे एक्चुअली फिलहाल में चिल्लाने का बहुत ज्यादा ट्रेंड चालू है अभी कुछ बेचारे कुछ मौलाना बेचारे मेंबर पे बहुत मजबूत चिल्लाते मैं बोल रहा हूँ और बाप मतलब खलास चिल्लाने से क्या होने वाला है बोलो क्या जलेडी था बयान आज का क्या कमली था क्या जलेडी था दे नोटा उड़ाए उधर ऐसे बयान को क्या करते हैं चिल्लाने से बात समझ में नहीं आती है गेटिंग इट ऑलवेज रिमेंबर चिल्लाता वो आदमी है जिसकी बात में तासीर नहीं है ताकत नहीं है ना जिसकी बात में वो वाला चलो मैं आपको आज एक कम्युनिकेशन की एक छोटी सी बात बताता हूँ दैट कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है वंस व्हाट हैपेंड इन चाइना मैंने आप लोग को स्टोरी बताया था चाइना की No, sir. No sir. Once what happened in China, two people were fighting. दो लोग फाइट कर रहे थे लड़ रहे थे they were having a strong scuffle तू मैं चालू थी इन लोगों की what happened और अपना इंडियन जो था ऐसे खड़ा हुआ देख रहा था वो साइड से अपना इम्मू मार 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 ए मार रहा नहीं मार 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 हमारे इधर होता है ना हमारे इधर क्या करते लोग खास जैसे उस्मा ने नमक कम डाली तो रफीक उसको पकड़ के तोड़ देता तो पूरा गली जमा हो जाती उधर मार रहा कैसे मार रहा उसको कोई छुड़ाता नहीं बल्कि देखते रहते लोग Yes, sir. है क्या नहीं तो हमारे यहाँ पे जैसे कि देखते रहते हैं तो अपना एक इंडियन जो था वो देख रहा था उसने देखा कि दो चाइनीज लोग लड़ रहे हैं वो देखता रहा वो लोग अभी मारा मारी देखेंगे मिलेंगे चाइना में मारते कैसा हमारे इधर तो क्या करते हैं डायरेक्ट फोन लगाते वाह नाना चाचा खाला फुप्पू नानी बीबी सब भर के आ गए रिक्शा से इस्टामा लेके उनको मारने गए चीप लोग सो बाय द वे मैं कुछ बता रहा था सो वहां पर जो था चाइना में दो लोग फाइट कर रहे थे आर्ग्यूमेंट चल रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग स्कफल चल रहा था और अपना इंडियन देख रहा था उनको मारेगा मार 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 आफ्टर द स्कफल बोथ ऑफ देम अपार्टेड एक यहाँ पे गया एक यहाँ गया one went here and another one went other sides
अब अपना जो इंडियन था उसके अंदर दिल में वल 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 हो रहा था, अरे यार मारा क्यों नहीं उसने यार, मैं मार देखने के लिए बैठा था इधर, मारा क्यों नहीं उसने। टाइम अपना खोटी हो गया। उसने क्या किया, एक के पीछे भागा, वो उनमें से एक के पीछे भागा, उसको बोला एक्सक्यूज मी व्हाई डिडंट यू बीट दैट पर्सन, अरे तूने उसको मारा क्यों नहीं। उसने उसको रिप्लाई दिया, इफ आई वुड हैव बीटन दैट पर्सन एट दैट टाइम, द ऑडियंस, द लुकर्स ऑन हु वर वाचिंग अस वुड हैव बीन कंसिडर्ड मी एज अ लूजर। उसने उसको क्या जवाब दिया, अगर मैंने उस बंदे को अगर मारा होता, अगर मेरा पहला हाथ अगर कभी उठ गया होता, तो जो ऑडियंस हमारा तमाशा देख रही थी वो समझ गई होती कि ये बंदा हार गया है। अब जब इसके पास में इसकी ताकत नहीं रही मुंह की, तो इसने सहारा लिया हाथ का, और वहां पे मेरी हार हो गई होती। और अपने इधर क्या होता है, हमारे इधर का जो हीरो रहता वही थर्ड क्लास रहता, ऐसे 4 बटन खुले, एक बार जो मैंने अपनी कमेंटमेंट कर दी तो फिर मैं अपना आपकी भी नहीं सुनता, अबे सुन रहा सुनने तो मत सुन, हमको क्या, आप समझे कि मेरी बात। और हमारे इधर के जो छपरी लोग रहते हैं ना, ऐसे थर्ड क्लास लेवल के, चीप कैटेगरी के, भुरटे जिनको बोलते हैं, बामटे, उन लोग का डायलॉग रहता, अपन तो ना भाई कभी झगड़े बिगड़े हो गए ना तो अपन पहले मारते फिर बाद में पूछते क्या किस्सा है। सुना कि नहीं डायलॉग आप लोगों ने? सुना है सर। सेम टोन में था ना? यस सर। आती है मेरे को भी यार पूना की भाषा। हाँ, गुड वन। चलो, सो दिस इज व्हाट, इसको बोलते हैं चीप हरकतें, सॉरी टू से दिस। चलो चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आज हम लोग बनाएंगे सेंटेंस बनता कैसे इंग्लिश के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ऊपर सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, ओके। और हमारा मेन हेडिंग रहेगा दिस इज। नाउ व्हेन डू वी यूज दिस इज? व्हेन समथिंग इज नियर एंड व्हेन समथिंग इज सिंगुलर। जब कोई चीज नजदीक रहेगी और एक रहेगी, हम लोग उसके लिए यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए दिस इज। अब हमारा जो सिस्टम रहेगा क्लास का वो रहेगा कुछ ऐसा, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, नेगेटिव। स्टेटमेंट मतलब है नहीं जुमला, वाक्य। क्वेश्चन मतलब है नहीं प्रश्न, सवाल। नेगेटिव मतलब है नहीं ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर नहीं आता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि मुझे बोलना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज ऑल ऑफ यू, ओके, इन द कैमरा, जस्ट लुक एट मी इन द कैमरा। अब मुझे बोलना है कि ये फोन है, ये फोन है, मुझे बोलना है इंग्लिश में ये फोन है, मैं कैसे बोलूंगा? सिंगुलर है, ये मतलब एक है। व्हेन समथिंग इज ओनली सिंगुलर, तो हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। काउंटेबल मतलब है नहीं जिसको गिन सकते हैं हम लोग, सिंगुलर के साथ में सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग। और हमारा मेन हेडिंग है दिस इज। तो दिस इज यूज कब करते हैं? दिस इज का मतलब क्या होता है? व्हेन समथिंग इज नियर एंड व्हेन समथिंग इज ओनली वन। जब कोई चीज नजदीक रहेगी, अब जैसे कि फोन मेरे पास में है, नजदीक है ना, मेरे पास में है। व्हेन समथिंग इज ओनली वन, और ये फोन एक है, आई एम गोइंग टू से दैट दिस इज, मतलब यानी ये है, दिस इज। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा सेंटेंस बनेगा व्हेन समथिंग इज नियर, व्हेन समथिंग इज सिंगुलर, व्हेन समथिंग इज नियर, व्हेन समथिंग इज सिंगुलर। जब कोई चीज मेरे पास में है और एक है, मैं उसके लिए क्या बोलूंगा? दिस इज। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज, सॉरी, दिस इज क्या है क्या? अब जब कोई चीज एक रहती है ना इंग्लिश में, उसके लिए लगाते हैं हम लोग ए लगाते हैं उसके लिए। अ, दिस इज अ मतलब है नहीं वन, सिंगुलर के लिए लगता है अ। सो दिस इज अ, अभी क्या है? फोन। सो दिस इज अ फोन। समझा? ये एक फोन है। व्हेन डू यूज दिस इज? व्हेन समथिंग इज नियर, व्हेन समथिंग इज सिंगुलर। जब कोई चीज नजदीक रहेगी और सिंगुलर एक रहेगी, हम लोग उसके लिए यूज करेंगे दिस इज अ। अब जैसे कि ये बॉक्स है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? दिस इज अ बॉक्स, ये एक बॉक्स है। सो ये जब मेरे नजदीक है और एक है। व्हेन समथिंग इज ओनली वन एंड व्हेन समथिंग इज ओनली नियर एंड सिंगुलर, वी आर गोइंग टू यूज दैट दिस इज, मतलब यानी ये एक बॉक्स है। सो दिस इज अ बॉक्स। सेम केस, अभी बॉटल मेरे पास में है, करेक्ट, बॉटल मेरे पास में है, नजदीक है। व्हेन समथिंग इज नियर एंड व्हेन समथिंग इज सिंगुलर, जब कोई चीज नजदीक रहेगी और एक रहेगी, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? दिस इज। एग्जांपल, दिस इज अ बॉटल। समझा? अब जो क्वेश्चन जो बनता है स्टेटमेंट के बाद में, जो क्वेश्चन बनाते हैं, उसके लिए आप लोग को करना पड़ेगा जिगजैग। जिगजैग मतलब नहीं सिर्फ उसको उल्टा करना है और वो क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज का बनेगा Is this a phone? इज दिस अ फोन? क्या ये फोन है? क्या ये फोन है? चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। इज दिस अ फोन? एंड नेगेटिव, नेगेटिव The मतलब phone. नहीं ऐसा, ऐसे सेंटेंस not a phone. नहीं आता। This is not a सो phone. दिस इज Is नॉट a phone. फोन।
मतलब ये फोन नहीं है, मतलब हम लोगों ने सेंटेंस हर तरीके से बनाया। स्टेटमेंट मतलब नहीं है, क्वेश्चन नेगेटिव, SQN। जब कभी मैं SQN लिखूंगा तो याद रखना स्टेटमेंट क्वेश्चन नेगेटिव। अब आप लोगों के सामने सेंटेंस यहाँ पे तैयार होके खड़ा हो गया। दिस इज अ बॉक्स, ये एक बॉक्स है। क्वेश्चन, इज दिस अ बॉक्स, क्या ये बॉक्स Yes, है? sir. नेगेटिव, दिस इजंट अ बॉक्स, Is not ये a- बॉक्स नहीं है। समझा? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ टी शर्ट, इज दिस अ टी शर्ट, दिस इजंट अ टी शर्ट। नेक्स्ट, दिस इज अ माउस, इज दिस अ Is माउस, this a mouse? this This isn't a isn't a mouse. mouse. For example, this is a book, is this a Is book, this a book? This this isn't a isn't book. a book। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये था स्टेटमेंट, क्वेश्चन एंड नेगेटिव। हमारा तीनों फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया। आप लोग यहाँ पर कुछ भी एक वर्ड ले सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू स्पीक अप फ्लुएंटली, इफ यू वांट टू स्पीक अप फास्टर, अगर आप लोग को इंग्लिश जल्दी सीखना है, फ्लुएंटली सीखना है, जल्दी जल्दी बोलना है, तो आप लोगों को रियलिटी के साथ में सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। रियलिटी मतलब है नहीं, आपको जो आसपास में दिख रहा है ना उसके ऊपर सेंटेंस बना दो। दिस इज अ लैपटॉप, is this a laptop, this isn't a laptop, this is a curtain, is this a curtain, this isn't a curtain, this is a bottle, is this a bottle, this isn't a bottle, this is a box, is this a box, this isn't a box, this is a phone, is this a phone, this isn't a phone। okay, so आपके पास में जो भी आपको नजदीक में जो भी चीजें दिख रही हैं, रियलिटी के साथ में उसके ऊपर सेंटेंस बना देना स्टार्ट करता रहो। नेक्स्ट वन, दूसरी बात, ग्रामर में आपको कभी आगे चल के पढ़ाऊंगा फुर्सत में एकदम। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज व्हाट, अब यही है, दिस इज अ फोन, फोन का पी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की लगता है ए। फिलहाल के लिए ज्यादा कमजोर दिमाग पे ज्यादा जोर देना नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अब फॉर एग्जांपल जब कोई चीज मेरे पास में नजदीक है, जैसे कि मेरे पास में है छतरी है मेरे पास में, तो मैं छतरी हो गया बोलते हैं अम्ब्रेला। Umbrella. तो दिस इज क्या आएगा? Umbrella. एन अम्ब्रेला आएगा उधर। करेक्ट, दिस इज एन अम्ब्रेला। करेक्ट, ये भी अपने टीचर ने अपने को आधा पढ़ाया हुआ। हाँ, ये क्यों है, क्या है, कैसे, अपन देखेंगे इंशाल्लाह स्टार प्लस पे आने वाले सेशंस के अंदर। आते रहिए, वलीमा खाते रहिए। सो दिस इज एन अम्ब्रेला। क्वेश्चन, Is this an umbrella? इज दिस एन अम्ब्रेला? एंड नेगेटिव, Isn't an umbrella. This is not an umbrella. अभी दिस इज नॉट एन अम्ब्रेला इतना लंबा चौड़ा बोलने के लिए भाई अपने पास में Isn't. टाइम नहीं है। वहाँ पे इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा इजंट। दिस इजंट एन This isn't an umbrella. अम्ब्रेला। समझा? सो दिस इज नॉट का क्या हो जाएगा? इजंट हो जाएगा। इज नॉट का हो जाएगा इजंट। सो दिस इज अ फोन, इज दिस अ फोन, दिस इजंट अ फोन। दिस इज एन अम्ब्रेला, इज दिस एन अम्ब्रेला, दिस इजंट एन अम्ब्रेला। दिस इज अ कार, इज दिस अ कार, दिस इजंट अ कार। आपको फास्ट जितना बोल सकते हैं उतना फास्ट आप लोग बोलो, उतना फास्ट आप लोगों को इंग्लिश आएगा। स्क्रीनशॉट ले डालो। वैसे तो क्या आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जिसके पास नहीं है मुझे टेक्स्ट कर सकता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो और इसके ऊपर आपको सेंटेंसेस प्रिपेयर करने हैं। एनी डाउट्स टू एनीवन? Good one. So, for example, you can take any word and you can make sentences with them. अब आप लोगों को क्या करना है, words लेना है और उसके ऊपर sentences बनाना है। Simple से आपको sentence बनाना है। Okay, sir. अब जो मिस्टर मुसैफ आप पूछ रहे हैं, दिस इज अ फोन इजंट इट, ये जो है ये क्वेश्चन टैग है। ये भी अपने पल्ले की बात नहीं है, क्योंकि अपने इधर अभी फिलहाल में बच्चे कच्चे लींबू है। दिखने में बकरी दिख रहे और वो हिरन के से भागने की कोशिश करना नहीं बेटे, वरना तो तुम गिर जाएंगे। ये क्वेश्चन टैग है। गुड, नेक्स्ट वन। सो इफ यू सी हियर, आप लोग जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ कार, इज दिस अ कार, दिस इज अ कार, दिस इज अ स्क्रीन, इज दिस अ स्क्रीन, दिस इजंट अ स्क्रीन, दिस इज अ phone, is this a phone, this isn't a phone, this is a box, is this a box, this isn't a box, this is a laptop, is this a laptop, this isn't a laptop, this is a watch, is this a watch, this isn't a watch, this is a clock, is this a clock, this isn't a clock। जितना फास्ट बोलेंगे उतना फास्ट आप लोग को इंशाल्लाह आगे बोलने आएगा। और अगर अब भी अगर ऐसे चला, दिस इज अ कबर्ड, is this a cupboard, this is, ए चुप ना, is this isn't a cupboard तो फिर अपनी जिंदगी में फिर जिंदगी भर अपनी इंग्लिश वैसी ही रहेगी। Is that clear? या याद रखना है और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं किया प्रैक्टिस, नहीं आएगा। खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं बाबा अंसार। ओके, गुड। आपके इंग्लिश के बाबा ने बोल दिया अभी आपको याद से रखना है कि आप लोगों को करना कैसे है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. मुझे चाहिए हर एक स्टूडेंट ने एट द एंड, जिस बंदे ने टेप स्क्रिप्ट्स पढ़ा उसको एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश आएगा। वो एकदम इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसा बोलेगा। फॉर एग्जांपल, my name's Paul, I'm married and my wife's a doctor. We have 2 children. My daughter is 8 and my son is just 3.
My name's Isabel. I'm 19 years old and I'm a student at university. I have one brother. His name's Alan. My mother's a teacher and my father's a taxi driver. Oh my God. अम्मी मेरे को इन्हें छना भी. Getting it, इमरान भाई? आसिम सामने वाली गिर जाने मांगता उधर. अम्मी ये भैया होना भी. Getting it? So literally, अरे बुरी मुंह वाले तुम्हारा मुंह पीला. मजाक कर रहा था. So मैं बताने का मकसद मेरा आप लोग का ये था कि आप लोग ऐसा बोलना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में. Is that clear? That ये आपका पूरा टेप स्क्रिप्ट से जितना ज्यादा आप लोग उसको सुनेंगे ब्रेन हैमरिंग होता रहेगा. Getting it? समझ में जितना सुनेंगे उतना. My name's Andre. I'm 9 years old and I'm from Germany. My name's Olga. I'm 16 and I'm from Russia. Hello, my name's Greg. I'm 18 years old and I'm from the United States. This is Kumiko. She's 1 year old and she's from Japan. My name's Katerina. I'm 20 and I'm from Italy. हमारे यहाँ पे क्या चलता है? My mother is a homemaker and my father is a farmer. तो वो वाला इंग्लिश आपके इंटरनेशनल कंपनी में नहीं चलेगा. अगर आपको जाना है तगड़े पैसे कमाना है, then you'll have to go for international English. Is that clear? Yes, sir. और सबसे पहले आपको एक प्रो टिप जाते जाते दे देता हूँ. इंग्लिश में कहावत है, सेव मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स. मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ. तो आपके जितने भी दोस्त रहेंगे ना थर्ड क्लास टाइप के लुखे, उनको आज के आज में जाके उनको 100 तलाक दो. कितने? गिन के 100. बोले आज के बाद कभी जिंदगी में उनको मिलना नहीं बेटे. Getting it? तभी आप लोग ऊपर जाएंगे. वरना अगर कभी रहे अरे बोले मेरा लंगोटिया यार है, मेरा बचपन का दोस्त है, जीने मरने का साथी है, हम लोग पिज्जा भी आधा आधा बांट के खाते हैं. अरे मेरे अम्मी देने के ना मेरे को बचपन में खिस्से में रखते थे 2 रुपए, तुम आधा 1 रुपए इनको देने का. मैं ऐसी दोस्ती हमारी तुम्हारे को क्या मालूम सर. तो ऐसी दोस्ती जो है ना अपने को खाली हाथ गाड़ी तक लेके जा सकती है, चांद तक लेके नहीं जाएगी बेटे. याद रखना. Is that clear to all of you? Yes, sir. We'll see you tomorrow inshallah. Please all of you practice at home. We are going to have the sessions tomorrow onwards. And आप लोगों को प्रैक्टिस करना है. कल मैं आप लोगों को सबसे रिपीट करवा के लूंगा. सबके रोल नंबर मैं आज वापस से ग्रुप में डालने वाला हूँ. कल मुझे सबके रोल नंबर वाइज यहाँ पर बंदे चाहिए. जिसका रोल नंबर नहीं मिला शाहरुख भाई सीधा बाहर जाएंगे अपन. ओके? क्यों? क्योंकि मुझे रोल नंबर के हिसाब से कल से सेंटेंस बुलवाने ना, इसके लिए रोल नंबर की आदत इतने दिन से डलवा रहा था मैं. क्योंकि वहाँ पे अभी जो सेंटेंसेस आप लोग रिपीट करेंगे, बीच में अगर किसी ने किसी के कुछ घुसा तो समझो फिर उसके अब्बा चेंज हो जाएंगे. फिर बाद में बोलना नहीं मेरे को. करेंगे? हाँ. क्योंकि मैं अगर बोलता हूँ ना सेंटेंस बनाने के लिए तो बीच में घुसते बोले 4 बार मैं बोलूंगा. बोले ऐसा नहीं. रोल नंबर वाइज हम लोग जाने वाले हैं. ओके? गेटिंग इट? तो अपनी आंखें, अपने कान, आंख, नाक सब खोल के रखने का. एंड व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ऑलराइट, विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह. सर या सर रीडिंग के लिए कौन सी बुक रिकमेंड करना चाहिए? हाँ, फिलहाल में देखो मैंने अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले. अपन अभी फिलहाल में दिख रहा है अपने को 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो अपने को लग रहा है अपन हिरन बन गए हुए, पर अभी अपन फिलहाल में बकरी है. भागना नहीं. तो रीडिंग के लिए करने का क्या, ओनली टेप स्क्रिप्ट्स. आपको जो मैंने फाइल सेंड किया था ना, वो फाइल के लास्ट में टेप स्क्रिप्ट्स है. जो टेप स्क्रिप्ट्स मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया था, वो टेप स्क्रिप्ट्स आपके फाइल के लास्ट में है. वो उसके वीडियोस अगर चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर है. वहाँ पर देखो मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, वहाँ से सीखो इंशाल्लाह. ऑलराइट? जितना उसको पढ़ेंगे सुनेंगे आप लोगों का इंग्लिश एक्सेलेंट हो जाएगा. बाकी कोई दूसरे बुक्स को हाथ लगाना नहीं. पटकन इंग्लिश सीखा, झटकन इंग्लिश सीखा, फटफर इंग्लिश बोलिएगा, ये ऐसे जो है बोले मुसन्निफा जो है वो आबेदा परवीन साहब, आहा, ऐसे बुक्स मत यूज करो क्योंकि आपका इंग्लिश का सत्यानाश मार डालेंगे. सो कोई बुक्स रेफर नहीं करूंगा मैं अभी आप लोगों को. सिर्फ और सिर्फ टेप स्क्रिप्ट्स जाके पढ़ना है. इंग्लिश विल बिकम एक्सीलेंट इंशाल्लाह. ऑलराइट, चलो, cheerio. sayonara.